Hello friends, welcome again. Our today's subject is criteria for construction equipment selection. Friends, after this current pandemic, we will be facing a lot of labor problems in our industry. We are uh, viewing the news and all that, and काफी लोग, काफी labor लोग, they are going back to their villages, going back to UP, MP, Bengal, and all that. In this scenario, in future, we may have to depend upon the equipments or construction machineries. So, in that concern, I will be highlighting some of the points to you in this short session. So, we'll start the session. As you see, a crane is there and high-rise building construction is going on. Crane is a very important equipment on site where high-rise buildings are there. So what is the need of mechanization in labor industry? Let us think about it point to point. To have a robust alternative of से जो काम होता है उससे काफ़ी ज़्यादा काम हम लोग मशीनरी से कर सकते हैं. To avoid delay, ऑफ कोर्स मैनुअल एफर्ट और मशीन एफर्ट में काफ़ी फर्क रहता है. तो मैनुअल एफर्ट से मशीन एफर्ट ज़्यादा रहता है, तो कम काम में हम लोग, कम समय में हम लोग ज़्यादा काम निकाल सकते हैं. सो इट मे अवॉइड द डिले. देन ऑफ कोर्स हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैन बी मेंटेन. मशीनरी जो है वो डिज़ाइन जिस काम के लिए किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमने रोड का एग्जांपल लिया तो रोड का जो पेवर रहता है, पेवर का काम एक बार उसको लेवल सेट कर दिया तो वो करेक्ट आपका लेवल, टिम्बर, सुपर एलिवेशन जो भी है वो अपने आप मेंटेन करके चलता है. लेकिन यही काम हमने अगर लेबर से करना चाहा तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है सरफेस, ये सब पॉसिबिलिटी है. सो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैन बी मेंटेन बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स. To achieve optimum use of material, manpower and finance, हमने अगर एक बार once we invest in equipments and machineries, we'll be requiring less manpower, but we will be using the optimum material. Means material wastage will not be there because manual intervention will not be there, and lower the insurance cost on labor. We have generally on big sites, we have to have around 300 to 500, 600 labors, and for those labors we have to do the insurance also under umbrella insurance kind of thing. So that cost is too much. So to avoid that, we can go for a machinery, and machinery insurance cost is very low in that comparison. Then to achieve easy and safe work, this is a very important topic. मैनुअल जब काम हम लोग करते हैं साइट पे तो काफ़ी चांसेस रहते हैं लेबर लोगों के कारण कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं. काफ़ी जगह पे लेबर काम करते कहीं से गिर के मर भी जाते हैं, कहीं इंजर हो जाते हैं. तो वो कुछ हमको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से, मशीनरी से काम करते टाइम नहीं सामने आएगा या नहीं फेस करना पड़ेगा, एंड वर्क विल बी इजी. देन सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है कि हमने अगर मशीनरी यूज करके हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर मेंटेन किया तो उस स्ट्रक्चर का सस्टेनेबिलिटी मतलब अगेंस्ट एनी डिजास्टर, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल बी सस्टेनेबल. Broad types of construction equipments are earthwork equipments, concreting equipments, and hoisting. So these are some photographs. Though we are not discussing in detail in this session, I'm just
rushing you through the requirements of the construction equipments and all that. So these are the equipments or machineries required for the concreting purpose. This is a transit mixer kind of thing. Three bag mixer, small mixer, one bag mixer. This is also a mixer. This is half bag mixer. Then this is a tree mix action uh, equipment, an RMC plant, and this is a mobile mini batching plant. Generally, we are using at all site. If there is a constraint of space, we can use this, or we have suppose ample space, then we can use RMC plant. We can install it on site also. General important selection criteria. We just rush through the important criteria. First is economical consideration. Owning cost and operating fuel cost of equipment, the resale value, the replacement cost of existing equipment, and the salvage value associated with the equipment. These things are to be considered while the selection. That's why this is called as economic consideration. In our main session, we will be discussing each and everything in detail. Then company specific. कंपनी का क्या पॉलिसी है, मतलब वो ओन करना चाहते हैं, नया लेना चाहते हैं, या फिर वो रेंट पे मशीनरी लेके अपना काम चलाना चाहते हैं. दैट क्राइटेरिया इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट. देन साइट कंडीशन के हिसाब से जो भी हमको वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन को जो भी फिट होगा इक्विपमेंट, दैट वी हैव टू सिलेक्ट. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया. For example, if there is a very muddy area and we'll be using some kind of JCB kind of thing, so that may वो वहाँ पे फंस जाएगा, मतलब निकल नहीं पाएगा, तो काम नहीं कर पाएगा. So according to site condition, we can select the equipment of machinery. Then equipment specific, मतलब क्या कि स्टैंडर्ड इक्विपमेंट हमने अगर परचेस किया और वो हमने कम से कम डाउन टाइम हमको जो देगा ऐसा देख के अगर हमने किया, और वो हमको अच्छा सैलवेज मनी भी दे सकता है, ऐसा हमने अगर सिलेक्ट किया, तो डेफिनेटली अपना काम ज़्यादा इजी हो जाएगा, आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा. क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक. अगर सपोज हम लोग कॉन्ट्रैक्टर है, तो ओनर और क्लाइंट के हिसाब से, उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से हमको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो मशीनरी या इक्विपमेंट सिलेक्ट करना है. मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक. मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक मतलब हमने अगर सोचा कि हमने एक ही कंपनी का इक्विपमेंट, एक ही कंपनी के काफ़ी इक्विपमेंट से मशीनरी परचेस करने हैं, तो वो एक अच्छा डील हो सकता है, क्योंकि हमको सेम कंपनी अच्छा प्राइस भी दे सकती है, रिपीटेड कस्टमर है इसलिए. उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक अगर डीलर से ही हमने लिया, तो हमको लोकली सर्विस भी काफ़ी मिल सकता है, काफ़ी अच्छा मिल सकता है, और मेंटेनेंस सपोर्ट भी मिल सकता है. सो इन हैविंग गुड output, getting good output, these two things are very important: good service and maintenance. Labor consideration. वो मशीनरी चलाने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड मैन पावर इज रिक्वायर्ड. तो वो भी सोच के, मतलब हम लोग एक एरिया में काम कर रहे हैं, हमने नया मशीन लिया, लेकिन हमको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं मिल रहा है, लेबर नहीं मिल रहा है, मैन पावर नहीं मिल रहा है, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, मशीन आइडल रहेगा. और उसका हमको लाइफ भी देखना है. उसका मशीन या इक्विपमेंट का हमने जब स्टडी करना है, तो उसका फिजिकल लाइफ, प्रॉफिट लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ, तीनों चीजें हम देखनी है. These all small things I'm just highlighting here. These will be discussed in our online session, uh, which we are planning to have in a month or so. So be in touch with us. We will be giving all information in that particular session. Then specific selection criteria for selecting the concreting equipment. हमने जो 3 मेजर पार्ट देखे, उसमें हमने आज concreting equipment में क्या करना चाहिए, सिलेक्शन कैसा करना चाहिए, तो एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ.
साइट कंडीशंस क्या है, लोकल रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे कुछ है क्या, नॉइज लिमिटेशंस है क्या, लोकल बॉडी का एनवायरमेंटल नॉर्म्स कुछ फॉलो करना है क्या, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कुछ है क्या, ये हमको देखना है कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट साइट पे लगाने के लिए, लगाने से पहले रादर। और अवेलेबिलिटी, ये इक्विपमेंट लोकली मतलब एटलीस्ट इंडिया में अवेलेबल है क्या, और वो इक्विपमेंट अगर हमको परचेज करने से पहले पहले हमको चेक करना है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के पास अवेलेबल है क्या, अगर उसके पास अवेलेबल है तो उसको हम लोग कुछ चार्जेस दे के वो मशीनरी हम लोग ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर साइट। Then continuity of operation, weather condition, effect of permanent work, temporary work, time restriction, concrete specification, ये सब फैक्टर्स कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कंक्रीट स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया M60 चाहिए और वो वहाँ पे M60 का कंक्रीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है इक्विपमेंट, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ कंस्ट्रेंट्स है, तो डेफिनेटली हमको प्रॉब्लम हो सकता है। तो साइट स्पेसिफिक हमने सोच के उसके हिसाब से ही कंक्रीटिंग इक्विपमेंट हमको सिलेक्ट कर सकते, हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आउटपुट रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम एंड टोटल आउटपुट रिक्वायर्ड इन गिवन टाइम फ्रेम। सपोज एक बिल्डिंग है, हम लोग उसमें पीटी स्लैब कर रहे हैं और पूरा ही बिल्डिंग हमको सपोज कंक्रीटिंग करना है, ऑन साइट हमने एक 3 बैग मिक्सर लगाया, फिर मोबाइल आरएमसी प्लांट लगाया, लेकिन हमको ये भी देखना है कि वो पर्टिकुलर आरएमसी प्लांट या फिर 3 बैग मिक्सर प्लांट जब हम लगाते हैं तो उसका डेली आउटपुट जो है उतना काम कंक्रीटिंग का साइट पे तैयार होना चाहिए। सो ऑन दैट बेसिस गिवन टाइम फ्रेम में हम लोग वो बिल्डिंग पूरा कर सकते हैं और अपना मशीन का आउटपुट आउटपुट भी प्रॉपर निकलेगा, और ओवरऑल मशीन या इक्विपमेंट परचेज करना हमको प्रॉफिट में जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसका आइडल टाइम बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मिक्स्ड कंक्रीट, मतलब अगर हमने आरएनसी प्लांट लगाया तो वहां से कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, तो रोड कंडीशन सेफ्टी मैटर्स हमको देखने हैं। देन कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट, प्लेसमेंट इक्विपमेंट साइट कंडीशन लेवल्स टू प्लेस द कंक्रीट, वेदर कंडीशंस एंड रेंटल कॉस्ट, ये सब पॉइंट्स हमने इसके अंदर देखने हैं। So friends, this was a very short session, and I thought you must be understood everything from this. But to get more knowledge, you can visit to our website, or you can contact us. You can write us on mail, and otherwise we'll be updating you about the online sessions. But friends, do attend these sessions. These will be very much important for you, and considering the current situation where we are facing a lot of labor issues, uh, these these sessions will give you a lot of practical experiences, lot of things that you can accordingly you can work on your site when everything will be started. So that's all for today. Thank you very much.